چالاننگ کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ای چالاننگ منصوبے کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ترجمان کے مطابق جلد ہی دوسرے شہروں میں بھی اطلاق ہوگا۔ علی صاحب کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ای چلان منصوبے کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ شہر کی معروف شاہراہوں پر حد رفتار لین کی خلاف ورزی پر ای چلان کیا جائے گا۔ اوور سپیڈنگ پر سپیڈ ریڈار کیمروں سے ای چلان کیے جائیں گے۔ شہر بھر میں وی ایم سی سکرینز کے ذریعے حد رفتار بارے آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ ترجمان سیف سٹی اتھارٹی کے مطابق کینال روڈ پر حد رفتار 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور مین بولیوارڈ گلبرگ پر 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ اوور سپیڈنگ، لین کی خلاف ورزی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ای چلاننگ سے شہر میں ٹریفک بہاؤ اور روڈ سیفٹی میں بہتری آئے گی۔ ترجمان سیف سٹی نے کہا کہ اہل لاہور وقت اور فیول کی بچت پر پروجیکٹ کے معترف ہیں۔ آئی جی پنجاب نے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ٹریفک مینجمنٹ نظام بہتر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ جلد ہی ای چلاننگ منصوبہ دیگر شہروں تک بھی پھیلایا جائے گا۔ سیکیورٹی خدشات یا تزئین و آرائش، گورنر ہاؤس سیر کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے اتوار کے روز بند کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے باعث سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر ہاؤس اتوار کے روز شہریوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات جس تسلسل سے ہوئے ہیں وہ دہشت گرد گورنر ہاؤس آنے والے شہریوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر ہاؤس کو اتوار کے روز شہریوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ گورنر ہاؤس کے ترجمان کے مطابق گورنر ہاؤس کی مرمت، تزئین و آرائش کی وجہ سے عام شہریوں کی سیر و تفریح کے لیے بند رہے گا۔ ترجمان گورنر ہاؤس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 25 نومبر بروز اتوار کو گورنر ہاؤس سیر کے لیے نہ آئیں۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور شہر کے کوڑا کرکٹ سے 35 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے ایوان وزیر اعلیٰ میں چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ چیئرمین پی این ڈی اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں چینی کمپنی نے حکومت پنجاب کو کوڑا کرکٹ خریدنے کی پیشکش کی۔ اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ پنجاب حکومت کی زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ چین پنجاب بھر میں سرمایہ کاری کرے گا۔ لاہور شہر کے کوڑا کرکٹ سے 35 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ شروع ہوگا، جبکہ فیصل آباد اور راولپنڈی میں 30 میگا واٹ کے منصوبے شروع ہوں گے۔ چینی وفد کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چائنیز کمپنی پنجاب حکومت سے منافع میں بھی شراکت کرے گی۔ فنڈز نہ ہونے پر اینستھیزیا مینجمنٹ سسٹم بند ہے۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹرز کی شدید کمی سے بحران پیدا ہو گیا ہے۔ غازی آباد، سمن آباد، سوڈیوال اور شاہدارہ ٹاؤن ہسپتال میں آپریشنز کی سہولت ناپید ہو چکی ہے۔ روزانہ سینکڑوں مریض متاثر ہونے لگے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے زیر انتظام ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول اسپتالوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹرز کی کمی دور کرنے کے لیے پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ سسٹم کے تحت اینستھیزیا کے ڈاکٹرز کو فی آپریشن پیسے ادا کر کے ان کی خدمات حاصل کی جا رہی تھیں۔ رواں مالی سال میں اینستھیزیا مینجمنٹ سسٹم کے لیے فنڈز ہی فراہم نہیں کیے گئے، جس کے باعث یہ سسٹم بند ہو گیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے چھوٹے اسپتالوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹرز کی کمی سنگین بحران کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ کمپنی کے زیر انتظام غازی آباد، سمن آباد، سوڈیوال اور شاہدرہ اسپتال میں بے ہوشی کا ڈاکٹر نہ ہونے سے آپریشن نہیں ہو رہے ہیں۔ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے محکمہ صحت نے بے ہوشی کے ڈاکٹرز کو خصوصی پیکج کے تحت ان کا الاؤنس دگنا کرنے کی بھی تجویز کی ہے، جو 1 سے 2 لاکھ روپے کے درمیان ہوگا، اور فی آپریشن اینستھیٹسٹ کو 2000 روپے فیس ادا کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ گریڈ 1 سے 15 تک محکموں میں بھرتیوں سے مشروط پابندی اٹھا لی گئی۔ 5 لاکھ افراد کو سالانہ ہنرمند اور 12 لاکھ افراد کو سالانہ روزگار فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں 24 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آیا۔ کابینہ نے نئی صنعتی پالیسی کی منظوری دی۔ نئی صنعتی پالیسی کے تحت مختلف شعبوں میں سالانہ 5 لاکھ ہنرمند افراد پیدا کیے جائیں گے، جبکہ 12 لاکھ افراد کو سالانہ روزگار فراہم کیا جائے گا۔ ہیلتھ پالیسی کے تحت رواں مالی سال میں 17 اضلاع، جبکہ مالی سال 2019 میں 36 اضلاع میں ہیلتھ کارڈ اسکیم شروع کی جائے گی۔ ہیلتھ کارڈ کی رقم 3,60,000 روپے ہوگی۔ سال سے پہلے کارڈ کی رقم
खत्म होने की सूरत में इसमें इजाफा भी किया जा सकेगा। हेल्थ कार्ड में तजहीज़ और तदफीन की रकम भी रखी गई है। सेहत के शोबे में NTS के तहत 14,000 पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाएगा, जबकि 3,000 डॉक्टर्स भी लिए जाएंगे। इजलास में नई लेबर पॉलिसी जबकि घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट लाने की मंजूरी समेत मुतादिद अहम फैसले भी किए गए। कसाफी पट, सिटी 42। फिर वही काम, फिर वही कहानी। PIA रोड पर मंशाबम कब्जा ग्रुप से वागुजार कराई गई जमीन पर माफिया ने परपुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं। जुज़वी दुकानें खुल गईं, झुग्गियां फिर आबाद हो गईं। LDA हुक्काम भी अभी तक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर अमल न करा सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पर मंशा बम कब्जा ग्रुप से वागुजार अराजी पर माफिया ने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। वागुजार कराई गई जमीन पर LDA के मातहत अमले की मिली भगत से दोबारा झुग्गियां बनना शुरू हो गई हैं, जबकि जुज़वी मिसमार शुदा दुकानें भी दोबारा खुलने लगी। LDA ने 200 अरब मालियत के 34 प्लाट वागुजार कराए। वागुजार कराई गई अराजी पर कैंप कायम करने का दावा पूरा हो सका और न ही बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की जा सकी। इस अराजी को अवामी मुफाद में इस्तेमाल का मंसूबा भी अभी तक पेश नहीं किया जा सका। इस बारे में जब मेंबर गवर्निंग बॉडी टेक्निकल LDA आमिर कुरैशी से राबिता किया गया तो उनका कहना था कि LDA ने मामलात पर नजर रखी हुई है और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने DG LDA को जमीन पर कैंप कायम करने की हिदायत की थी, लेकिन अभी तक LDA इस जमीन की हिफाजत पर अमला भी मामूर नहीं कर सकी। मुल्तान रोड सब्जी मंडी के आड़तियों और सब्जी फरोशों ने मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था मार्केट कमेटी मंडी में सहूलियात फराहम करने की बजाय मसाइल पैदा कर रही है। मंडी के सब्जी फरोशों को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रोजाना मंडी बंद करने के अहकाम दिए जाने लगे हैं। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान रोड सब्जी मंडी शहर के बेशतर इलाकों में सब्जी फ्राहम करती है। ये मंडी जब से कायम हुई है मसाइल का शिकार है। मार्केट कमेटी ने सब्जी फरोशों के लिए नए अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत मंडी को रोजाना सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बंद किया जाएगा, जिस पर मंडी के आढ़ती और सब्जी फरोश सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि मार्केट कमेटी उनके मसाइल में इजाफा कर रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन और करप्शन है। सही, ये दफ्तरों में बैठे हैं और वहाँ पे बैठे पॉलिसीज बनाते हैं सिर्फ लूट खसूट के लिए। इनको मार्केट कमेटी की डेवलपमेंट से 1% भी इनका कंसर्न जो है ना वो नहीं है। मुल्तान रोड सब्जी मंडी के सदर मलिक शराफत खोकर का कहना था कि कई मरतबा मार्केट कमेटी के एहलकारों को मंडी के मसाइल से आगाह किया है, क्योंकि मंडी में ना तो सफाई का इंतजाम है और ना ही सब्जी फरोशों के बैठने के लिए जगह। आढ़तियों और सब्जी फरोशों का कहना है कि इस मंडी में काम करने वाले गरीब लोग हैं, वो मंडी की हालत खुद से कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि वो मंडी में बाकायदा शेड बनाएं और सफाई का इंतजाम बेहतर करें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ हसन अली, सिटी 42। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब का शहर समेत पंजाब भर के दरबारों पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ेर ज़मीन तालाब बनाने का फैसला सामने आया है। मंसूबे के हवाले से 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने दरबारों में ज़ेर ज़मीन तालाब बनाने का फैसला किया ताकि वज़ू खानों में इस्तेमाल होने वाले पानी को महफूज बनाया जा सके। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए महकमा औकाफ पंजाब ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी को सरबराह मुकर्रर किया गया, जबकि डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ, डेप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर औकाफ और एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ पंजाब भी कमेटी के मेंबर मुकर्रर किए गए। नोटिफिकेशन में तमाम जोनल एडमिनिस्ट्रेटर को हिदायत की गई कि वो दरबारों पर 24 घंटे इस्तेमाल होने वाले पानी की मिकदार का जायजा लें और वुजू खानों में लीकेज को फौरी तौर पर बंद करने के इक़दाम उठाएं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर दरबारों से मुल्हिका ज़ेर ज़मीन तालाब के लिए जगह तजवीज़ करें जिससे इमारत को कोई खतरात लाहक न हो। इंतजामिया जगह तजवीज़ करने के बाद चीफ टाउन प्लानर की टीम को आगाह करे ताकि मंसूबे पर मजीद काम किया जा सके। अभी आपको बताएं FIA की डिजिटल करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर क्रैकडाउन करके FIA ने साइबर क्राइम की तारीख में पहली साइडिंग मशीन पकड़ ली। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। का कारोबार करने वालों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। डायरेक्टर साइबर क्राइम कैप्टन रिटायर्ड शुएब की सरबराही में FIA ने साइबर क्राइम की तारीख में पहली माइनिंग मशीन पकड़ ली। हम बिड कॉलेज रन करते थे। द एम इज़ टू ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान एंड टू एजुकेट पीपल अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी सोशो इकोनॉमिक इशूज सॉल्व कर दिया। अभी तक सच हमारे पास एक भी यूज़र साइन अप नहीं जो कि हम प्रोडक्शन में से कह सके हमने इसे सेल किया है। अभी हम ईद के बाद से हमने ये कॉलेज की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और अब तक हम डेवलपमेंट फेज़ में जा रहे हैं।
डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक माइनिंग मशीन से इंटरनेट पर डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन को हैक करके कॉइन में तब्दील किया जाता था। गुलबर्ग में गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी की इलीगल ट्रेड हो रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किए हैं कि इसको क्रैक डाउन करें और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसी तरह हमने फिर इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया। इन्होंने बाकायदा कॉलेज बनाया हुआ था जहाँ पे लोगों को बाकायदा तालीम देते थे इलीगल ट्रेड। bit.college के नाम से इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बिल्ड की हुई है और इसके अलावा वहाँ पे डिजिटल करेंसी की ये ट्रेड भी करते थे। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान में हसन, रिजवान और सलमान शामिल हैं, जो इंग्लैंड में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर कारोबार कर रहे थे। आपको बताएं, आईजी पंजाब ने मुसालिहती कमेटियों के SOPs तैयार कर लिए हैं। छोटे केसेस मुसालिहती कमेटियां हल करेंगी। फैसला न होने की सूरत में मुतालिका SHO को केस भेजा जाएगा। मज़ीद तफसीलात अली साही की इस रिपोर्ट में। IG पंजाब की जानब से मसालती कमेटियों के SOPs तैयार कर लिए गए। मसालती कमेटियों के SOPs 10 नुकात पर मुश्तमिल हैं। मसालती कमेटियां छोटे केसेस को हल करेंगी जिनसे पुलिस और अदालत का वक्त बचेगा। IG पंजाब का कहना था कि मसालती कमेटियां फ्रीकैन की रजामंदी के साथ ही फैसला करेंगी। जिस केस का फैसला नहीं होगा इसे मुतलका SHO को भिजवाया जाएगा। अमजद जावेद सलीमी के मुताबिक एक जिला में 21 अफराद पर मुश्तमिल मसालती कमेटी बनाई जाएगी। मुतलका DPO मसालती कमेटी के मेंबरान का इंतखाब करेगा। IG पंजाब ने कहा कि मसालती कमेटियों के मेंबरान बगैर पैसों के रजामंदी से काम करेंगे। इसके मुताबिक हर 3 माह बाद कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगा। कमेटी में हिस्सा न लेने वाले मेंबरान को फारिग कर दिया जाएगा। अमजद जावेद सलीमी कहते हैं कि सेक्रेटरी मेंबरान का शेड्यूल बनाएगा, जबकि मेंबरान के ताउन से एक पुलिस अफसर भी मुकर्रर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 25वें कन्वोकेशन पे 2263 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 20 तलबा को PhD की इसनाद दी गई। तफसीलात जानिए अकमल सुमरो की रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर चांसलर, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जावेद कुरैशी ने कॉन्वोकेशन में शिरकत की। UET लाहौर और सब कैंपसेस के 2263 तलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। 71 तलबा को मेडल्स, PhD की 20, MPhil की 564 और BSc की 1680 असनाद तकसीम की गईं। हिरा मकसूद ने 5, मरियम जुल्फकार ने 4, इसरा तारिक, उसामा नसीर, हमजा अशरफ, फैजान मुनीर, हाफिज समीउल्लाह ने 3-3, जबकि तंजीला अनीस, सैयद अली हादी नकवी, अतीका बतूल ने 2-2 मेडल्स हासिल किए। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि इंजीनियरिंग इदारों के निसाब को अपडेट करना होगा। यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, particularly the engineering universities, must update their curricula and experiment with new pedagogical skills to keep pace with fast moving world. वाइस चांसलर डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने कहा कि मुस्तकबिल में भी तलबा अपने प्रोजेक्ट्स वक्त पर जमा कराएं ताकि इनको बरवक्त असनाद जारी की जा सकें। उन्हें उम्मीद है कि इंडस्ट्री में भी ये तलबा अपना अच्छा नाम बनाएंगे। ग्रेजुएट्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटी खत्म होने पर खुश भी हैं और उदास भी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इतनी कम फीस में आप इंजीनियर बन जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर उसके बाद आप बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप कहीं पे भी आपको छोड़ने का दिल नहीं चाहता। आज मतलब कि हमारे आपसे हमसे पूछा जाए तो मतलब कि बहुत दुख हो रहा है इससे जाने में, लेकिन वाकई ये बहुत अच्छी लाइफ है। पास आउट होने के बाद हम लोगों ने जाकर जब इंडस्ट्रीज़ के इंटरव्यू दिया तो एक बड़ा हमें अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मिला। UET की जो रेपुटेशन है उसके लिहाज से भी इसका नाम तो आई थिंक लाइक इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा है और लाइक UET के ग्रेजुएट्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। UET के ग्रेजुएट्स ने डिग्रियां तो हासिल कर ली हैं, लेकिन उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए हुकूमत को नौकरियां फराहम करने का बंदोबस्त भी करना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। ताल्लुक रखने वाले ठेकेदार इशफाक की खातून ने दुर्गत बना डाली। थप्पड़ और जूतों से खूब गुस्सा निकाला। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अरे इतना गुस्सा। कुर्सी पर बैठे ठेकेदार शेख अशफाक पर खातून का अचानक हमला, थप्पड़ों और जूतों की बरसात, रोकते रोकते सारा गुस्सा निकाल दिया। जी हाँ, ये शेख अशफाक नामी शाहदरा के एक ठेकेदार हैं जिनकी खातून पिटाई कर रही है। जराये के मुताबिक ठेकेदार अशफाक और लीगी MNA मलिक रियाज के भाई मलिक अब्रार मुश्तरका ठेकेदारी करते हैं और कमीशन के मामले पर मलिक अब्रार शेख अशफाक से नाराज हो गए,
جس کا غصہ انہوں نے اپنے ہی انداز میں نکالنے کی کوشش کی۔ ملک ابرار کی انٹری بھی دیکھیں، اپنے ہی ایک ساتھی کے ذریعے شیخ اشفاق کو قابو میں کرایا اور خود خاتون کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہنستے ہنستے کبھی دائیں ہوتے ہیں اور کبھی بائیں، گویا کہ خاتون کو پورا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ شیخ اشفاق کا کہنا ہے کہ ملک ابرار مجھے پیسے مانگنے پر قتل کی دھمکیاں دیتا ہے۔ خاتون کو 50,000 روپے دے کر بلایا گیا، ویڈیو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ملک ابرار اور خاتون کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ ٹھیکیدار جو ابرار ہے یہ بڑا پاورفل آدمی ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے اور مجھے بہت زیادہ بلیک میل کر چکا ہے، جیسے یہ سارا دھوکہ چاہے ہے اور اس کے خلاف بھی کروں گا، وہ خود ہی بیچ میں آ جائے گی۔ ٹھیکیدار شیخ اشفاق نے پٹائی سے بچنے کے لیے خاتون کو نکاح کی آفر بھی کی، مگر خاتون نے ان کی سنی انسنی کر دی اور لگاتار اپنا مشن جاری رکھا۔ فاران یامین، سٹی 42۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی زیر کنٹرول ایریاز کی رہائشی اور کمرشل عمارتوں کے نقشہ جات کو ٹیپا کے اعتراضات پر منسوخ کیا گیا، جبکہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 7 کمرشل اور رہائشی عمارتوں کے نقشہ جات بغیر کسی اعتراض کے منظور کر لیے گئے۔ دارالشفقت کو مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کی اجازت مل گئی۔ سٹی 42 کو موصول ہونے والی ہائی لیول ڈیزائن کمپنی کی میٹنگ منٹس کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر کنٹرول ایریاز کی 3 عمارتوں کے نقشوں پر اعتراض لگائے گئے تھے، جبکہ ایل ڈی اے کے زیر کنٹرول ایریاز کی 7 عمارتوں کے نقشے کلیئر کر دیے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر کنٹرول ایریاز میں تعمیر ہونے والی 3 عمارتوں کے نقشوں پر ٹیپا نے اعتراض لگا دیے۔ ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی نے ایم سی ایل ایریاز کی تینوں کمرشل عمارتوں کے نقشہ جات کی ٹریفک امپیکٹ اسٹیٹمنٹ رپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ داتا گنج بخش زون، سمن آباد زون، شالامار زون اور گلبرگ زون کے ایریاز کے نقشے ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کو بھیجے گئے ہیں۔ سمن آباد زون کے زیر کنٹرول ملتان روڈ پر دارالشفقت کی 5 کنال 7 مرلہ اراضی پر مسجد اور مدرسہ تعمیر کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ داتا گنج بخش زون کے ایریا لٹن روڈ اور شاہراہ قائد اعظم پر تعمیر ہونے والی کمرشل عمارتوں کے نقشوں پر ٹیپا کی جانب سے اعتراضات بھی لگا دیے گئے، جبکہ گلبرگ زون کے زیر کنٹرول ایریا میکلور روڈ اور ڈیوس روڈ کی اسمال انڈسٹری کی 6 کنال 5 مرلہ بلڈنگ کا نقشہ بھی منظور کر لیا گیا۔ شالامار زون کی 3 میں سے 2 کمرشل عمارتوں کا نقشہ منظور، جبکہ شالیمار لنک روڈ پر واقع 18 مرلہ کمرشل شاپس کا نقشہ منسوخ کر دیا گیا۔ سٹی 42 کو موصول ہونے والے ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کے میٹنگ منٹس کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر کنٹرول ایریاز کی 3 عمارتوں کے نقشوں پر اعتراضات لگائے گئے، جبکہ ایل ٹی اے کے زیر کنٹرول ایریاز کی 7 عمارتوں کے نقشے کلیئر کر دیے گئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر کنٹرول ایریاز میں تعمیر ہونے والی 3 عمارتوں کے نقشوں پر ٹیپا نے اعتراض لگا دیے۔ ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی نے ایم سی ایل ایریاز کی 3 کمرشل عمارتوں کے نقشہ جات کی ٹریفک امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ داتا گنج بخش زون، سمن آباد زون، شالامار زون اور گلبرگ زون کے ایریاز کے نقشے ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کو بھیجے گئے۔ سمن آباد زون کے زیر کنٹرول ملتان روڈ پر دارالشفقت کی 5 کنال 7 مرلہ اراضی پر مسجد اور مدرسہ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ داتا گنج بخش زون کے ایریا لٹن روڈ اور شاہراہ قائد اعظم پر تعمیر ہونے والی کمرشل عمارتوں کے نقشوں پر ٹیپا کی جانب سے اعتراضات لگا دیے گئے، جبکہ گلبرگ زون کے زیر کنٹرول ایریا میکلور روڈ اور ڈیوس روڈ کی اسمال انڈسٹری کی 6 کنال 5 مرلہ بلڈنگ کا نقشہ منظور کر لیا گیا۔ شالامار زون کی 3 میں سے 2 کمرشل عمارتوں کا نقشہ منظور، جبکہ شالیمار لنک روڈ پر واقع 18 مرلہ کمرشل شاپس کا نقشہ منسوخ کر دیا گیا۔ ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر کنٹرول ایریا کی 4 ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر کنٹرول ایریا کی 4 رہائشی جبکہ 3 کمرشل عمارتوں کے نقشے منظور کر لیے ہیں۔ کیمرہ مین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وائس چیئرمین کو اتھارٹی کے مکمل اختیارات دینے کی مخالفت، وائس چیئرمین کو با اختیار بنانے کا ایجنڈا بھی زیر بحث آیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت گورنر باڈی کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی اہم شخصیت نے چیئرمین کے اختیارات صوبائی وزیر کو تفویض کرنے کی سفارش کی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجویز مسترد کر کے وائس چیئرمین پر بھرپور اعتماد کا اعلان کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران کو با اختیار بنانے کی تجویز کی توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے آئندہ وائس چیئرمین کو وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں اتھارٹی اجلاس بلانے اور صدارت کرنے کے اختیارات دے دیے۔
पंजाब हुकूमत की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को झटका। दातागंज बख्श जोन को मॉडल जोन बनाने के लिए इकदामात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ। बिल्कुल, जोनल ऑफिसर रेगुलेशन गुलबर्ग आमिर भट्ट तजावुजात के खात्मे में रुकावट बन गए। बोहड़वाला चौक में ऑपरेशन की इतला लीक करने पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन गुलबर्ग जोन आमिर भट्ट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू के मुताबिक जोनल ऑफिसर रेगुलेशन आमिर अख्तर भट्ट ने महकमे की कार्रवाई बारे रेढ़ी बानों को क्यों बताया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने बोहड़वाला चौक पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की इतला मुतल्लिका गुलबर्ग जोन के जोनल ऑफिसर रेगुलेशन आमिर अख्तर भट्ट को दी, लेकिन ऑफिशियल कार्रवाई को सीगा एराज में न रखा गया और ऑपरेशन की इतला पहले ही दे दी गई। बोहड़वाला चौक पर रेढ़ी बानों का एहतजाज गैर कानूनी है। सड़क ब्लॉक करके रेढ़ी बान और दुकानदार प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोनल ऑफिसर रेगुलेशन आमिर अख्तर भट्ट से रेढ़ी बानों को ऑपरेशन की खबर देने पर वजाहत तलब कर ली गई है। मिशन क्लीन लाहौर के ऑपरेशन में आड़े आने पर लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, डीसी लाहौर और चीफ ऑफिसर को मुत्तला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का तोसी मंसूबा मंजूर कर लिया गया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 मंजिला नई इमारत के लिए 82 करोड़ 52 लाख रुपए के फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड में चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की सरबराही में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी PND इफ्तिखार अली सहू और महकमा पब्लिक बिल्डिंग के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में हाई कोर्ट की इमारत के साथ इजाफी इमारत की तामीर के मंसूबे का PC1 पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट हाई कोर्ट इंतजामिया की सिफारिशात के मुताबिक नई इमारत तामीर करना चाहता है, जिसके लिए उन्हें 82 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं। इमारत में 2 बेसमेंट, जजेस लाइब्रेरी और मुख्तलिफ दफातर कायम किए जाएंगे, जिसके लिए चेयरमैन PND बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने मंजूरी दे दी और महकमा खजाना के हुकाम को लाहौर हाई कोर्ट में 10 मंजिला नई इमारत की तामीर के लिए जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने के अहकामात दिए। पंजाब हुकूमत ने पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दील करने के लिए अमली इकदामात के लिए इस्लाहात तश्कील दे दी। 7 रुकनी रिफॉर्म्स कमेटी में गैर मुल्की पुलिस अफसर को भी शामिल कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने पुलिस में इस्लाहात करने की एक मरतबा फिर ठान ली है। इंतजामी ढांचे में तब्दीली और पुलिस इस्लाहात के लिए अपनों पर एतबार नहीं, लिहाजा तब्दीली के लिए साबिक बरतानवी पुलिस अफसर को भी शामिल कर लिया गया है। बरतानवी पुलिस अफसर पंजाब पुलिस के मौजूदा साबिक अफसरान को बताएंगे कि पुलिस में क्या इस्लाहात लाई जाएं। 7 रुकनी कमेटी की सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम करेंगे। दीगर में IG पंजाब अली मुर्तजा, साबिक IG पंजाब मेजर रिटायर्ड ज़ियाउल हसन, साबिक सिविल सर्वेंट सलमान गनी, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर लंदन मैक चिश्ती और एक साबिक जुडिशल अफसर को शामिल किया जाएगा। कमेटी 1 माह में वज़ीर आला को इस्लाहात का मुसव्वदा तैयार करके पेश करेगी, जबकि हतमी मुसव्वदा कैबिनेट की मीटिंग से पहले पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब की तैनाती के तरीक़ाकार के हवाले से दायर दरख्वास्त पर होम सेक्रेटरी को 26 नवंबर को तलब कर लिया। मलिक अशरफ की रिपोर्ट इसी बारे में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने अब्दुल रज़ाक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी कानून सलाहुद्दीन और AIG ह्यूमन राइट्स सैफुल मुर्तजा समेत दीगर पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर ने सेक्रेटरी कानून से इस्तफसार किया कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन के क़याम के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया। सेक्रेटरी कानून बोले वो इस बारे में तफसीली मालूमात नहीं रखते। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी कानून के जवाब पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि फिर पब्लिक सेफ्टी कमीशन का मामला किससे मुतालिका है। सेक्रेटरी कानून बोले होम सेक्रेटरी से मुतालिका है, वही बेहतर बता सकते हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि नए पुलिस ऑर्डर के तरमीमी एक्ट के लिए मुसव्वदा वज़ीर आला को भिजवाया गया है। नए कानून के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला अहम नौयत का है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौका इख्तियार किया कि IG समेत आला पुलिस अफसरान की तैनातियों के लिए 16 बरसों से कानून पर अमल नहीं किया गया। पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक IG पंजाब की तैनाती के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील जरूरी है। हुकूमत नई तजावीज़ और सिफारिशात को जवाब बनाकर मामले में ताखीर कर रही है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी करते हुए होम सेक्रेटरी पंजाब को जवाब समेत जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। मलिक अशरफ, सिटी 42। और अब आपको बताएं, मुल्की तारीख में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रवां हफ्ते सोना 2500 रुपए महंगा होकर 64,000 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने के जेवरात के शौकीन खवातीन में परेशानी की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। शहर के सराफा बाजार और मार्केटों में सोने की कीमतों को पर लग गए। मुल्की तारीख में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान सोने की कीमत में 2500 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद मुल्की तारीख में पहली मरतबा खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 64,000 रुपए का हो गया। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 58,600 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने बिलखुसूस खवातीन को परेशानी से दो चार कर दिया है। खवातीन का कहना है कि शादियों के लिए सोना खरीदना मजबूरी बन चुका है।
लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद अफजल सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफे को बैनुल अक़वामी सराफा मार्केट से मुंसलिक करते हैं। जरगर कहते हैं आलमी मार्केट में सोने की खरीदारी में इजाफा हुआ, जिसके बायस कीमतें बढ़ी और इसके असरात मकामी सराफा मार्केटों पर भी मुरतब हुए। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब भर के 7000 स्कूलों का ऑनलाइन डेटा मुरत्तिब करने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वेब सिस्टम तैयार कर लिया। आईटी टीचर्स डेटा सिस्टम पर अपलोड करेंगे। पंजाब आईटी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। महकमा तालीम ने वेब सिस्टम पर डेटा अपलोड करने के लिए माहिर आईटी टीचर्स की फहरिस्त तलब कर ली है और मज़कूरा आईटी टीचर्स को 26 और 27 नवंबर को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग हासिल करने वाले मास्टर ट्रेनीज अपने अपने इजला के आईटी टीचर्स को तरबियत देंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन हुक्काम का कहना है कि वेबसाइट बनाने का मकसद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का डेटा इकट्ठा करना है। दूसरी जानिब पंजाब आईटी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी काशिफ शहजाद का कहना है कि आईटी टीचर से डेटा एंट्री कराना दुरुस्त इक़दाम नहीं है। उधर आपको बताएं, शाकिर रोड इचरा पर सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने महकमा सुई नादरन गैस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि न सिर्फ सर्दी बल्कि गर्मी में भी सुई गैस की लोड शेडिंग होती है। गुज़श्ता एक माह से सुई गैस के कम प्रेशर और अक्सर लोड शेडिंग का सामना है। उनका कहना था कि वो सिलेंडर्स, तेल वाला चूल्हा और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने महकमा सुई गैस और मुंतखब सियासी नुमाइंदों से मसला हल कराने का मुतालबा किया। शहर के तारीखी लंडा बाजार की रौनकें मान पड़ गईं। तजावुजात, ऑपरेशन और बढ़ती कीमतों से लंडे बाजार के ताजिर परेशानी से दो चार हैं। तौकीर अकरम की रिपोर्ट देखिए। तारीखी लंडे बाजार में किया गया तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन इसकी रौनकें भी ले गया। सैकड़ों खरीदारों की तादाद चंद एक में बदल कर रह गई है। लंडे बाजार के परेशान हाल ताजिरों का कहना है कि टैक्स में इजाफे और तजावुजात ऑपरेशन से काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। ग्राहक इधर का रुख करना छोड़ गए हैं। इतनी महंगाई कर दी है कि किसी के पास कोई चीज नहीं खरीदने वाला है। इतनी वजन इतना महंगा हो गया। हम लेते हैं लाट का माल, वो पहले था 180 रुपए किलो, अब दे रहे हैं 250 रुपया किलो। शहरियों का कहना है कि लंडे बाजार से अच्छी और सस्ती चीजें मिल जाया करती थी। दाम मुनासिब होने के बायस इधर का रुख करते थे, मगर अब लंडे बाजार में भी कीमतें पहुंच से दूर होने लगी हैं। तब्दीली ने जड़ी वो तो बिल्कुल ही समझ लो आ ही गई है ना। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बताता, हर चीज़ में तब्दीली नज़र आ रही है। अवाम इस तब्दीली से बहुत परेशान है। ऐसी तब्दीली लाने के लिए हम इमरान खान साहब को नहीं लाए थे। लंडे बाजार की ताजिर बिरादरी ने टैक्स में कमी का मुतालबा किया है, क्योंकि लंडा बाजार गरीब तबके के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, जो कीमतें बढ़ने के बायस भी अहमियत खो रहा है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, गवर्नमेंट हाई स्कूल अतो की ऐवान लाहौर कैंट ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद तलबा से कमरा जमात की सफाई करवाने जाने लगे। स्कूल में दर्जा चहारम का मुलाजिम न होने के बायस बच्चों से स्कूल का फर्नीचर भी उठवाया जाने लगा है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल अतो की आवान में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद तलबा से सफाई कराई जाने लगी। हेड मास्टर शाहिद सदीक का कहना है कि महकमे की जानिब से स्कूल की सफाई के लिए एक भी खाकरूब नहीं दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक एहसान का कहना है कि बच्चों से सफाई कराना दुरुस्त नहीं, मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाएगी। बच्चों से किसी भी सूरत इस तरह सफाई करवाना जो है वो मुनासिब नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में ये जो फुटेज सामने आई है ये इंतहाई नामुनासिब है। इस हिस्से में बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सदर राना अता मोहम्मद का कहना है कि स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय हर स्कूल को कम अज कम एक खाकरूब जरूर मुहैया करना चाहिए। जितना छोटा स्कूल है, ये बड़ा 100 कनाल का है या 2 कनाल का है, ये कम से कम एक स्वीपर तो हो ताकि वो उसकी सफाई कर सके। तो इस तरह से बच्चों से काम कराने की बजाय अगर स्वीपर मिल जाएं अदारों को तो वो सफाई बेहतर हो सकेगी। सूबे भर के सरकारी स्कूलों में 31,000 खाकरूब भर्ती करने की जरूरत है, जिनकी भर्ती के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन के पास 5 अरब रुपए का बजट ही मौजूद नहीं। कैमरामैन राना असर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42।
اور اب آپ کو بتائیں کہ جنوری میں ادویات کا سٹاک ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر تمام اضلاع کے سی ای اوز ہیلتھ کی کانفرنس ہوئی اور سی ای اوز کو ادویات کی خریداری کا عمل جلد مکمل کرنے اور شارٹیج کی صورت میں لوکل پرچیز کے تحت کمی پوری کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ رواں مالی سال میں ادویات کی خریداری کا عمل بر وقت شروع نہ ہونے سے تمام اضلاع، ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں اور مراکز صحت میں ادویات کی جنوری میں شدید قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس صورتحال کے تدارک کے لیے سیکرٹری پرائمری ہیلتھ محمد خان رانجھا کی صدارت میں ویڈیو لنک کے ذریعے سی ای اوز ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت پنجاب نے سرکاری افسران کے بناولیٹ فنڈ میں اضافے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق گیزیٹڈ افسران کے دوران سروس وفات کی صورت میں کفن اور دفن کی رقم 20,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے کر دی گئی ہے۔ سرکاری افسران کے بچوں کی شادی کے اخراجات 50,000 سے 1.5 لاکھ روپے کر دیے گئے ہیں۔ بچوں کا اسکالرشپ 16,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے اور بیواؤں کا ماہانہ معاوضہ 12,000 سے 20,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ ادھر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے منسلک نجی اسکولوں کا کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کیا گیا۔ پیف کے تحت 7,243 پرائیویٹ اسکولوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الحاق شدہ نجی اسکولوں کے کوالٹی انشورنس ٹیسٹ لازمی طور پر پاس ہوگا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت نجی اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کا کوالٹی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ پیف لاہور سمیت صوبے بھر کے 7,243 نجی اسکولوں کا کوالٹی ٹیسٹ لے گا۔ ان اسکولوں میں ایجوکیشن واچر، فائنینشیل اسسٹنس اسکولز، نیو اسکول پروگرام کے تحت رجسٹر ہونے والے ادارے شامل ہیں۔ گورنر پنجاب کی مختلف ممالک کے 27 رکنی ینگ سفارتکاروں کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 پاکستانی قربانیاں اور 1 ارب روپے سے زائد سے کچھ ممالک پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پر حیرانگی ہے اور افسوس بھی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے سب سپروائزر ممالک ملک کا بھی افغانستان دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکے۔ پاکستان تن تنہا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانیوں کی ناقابل تسخیر ہمت اور حوصلہ ہے، دہشت گردی کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ نئی لیبر پالیسی میں مزدوروں کی حفاظتی تدابیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل کی جرمن وفد سے ملاقات پر گفتگو کی۔ تفصیلات دیکھیے ساؤتھ برڈ کی اس رپورٹ میں۔ جرمن کمپنی جس کے نمائندگان ڈاکٹر جوہلنگ، مس ہنبر اور مس رومینا نے صوبائی وزیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کام کرنے والے مقامات پر حادثات کی روک تھام اور لیبر انسپیکٹرز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ آئے روز فیکٹریوں میں حادثات ہو رہے ہیں۔ نئی لیبر پالیسی میں فیکٹری ورکروں کے لیے ہیلمٹ، دستانے اور ماسک سمیت دیگر سہولیات لینا ضروری ہوں گی، جن پر عمل درآمد ہر صورت کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے مہینے میں محکمے کے افسران کی ٹریننگ کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ ہے، یہ بہت ایک میجر سبجیکٹ ہے کہ کس طریقے سے جو ہماری لیبر کام کرتی ہے ان کو ایسی ڈیزیز سے بچایا جا سکے جو فیکٹریز میں کیمیکل کے تھرو یا کسی بھی حادثے کا جو شکار ہماری لیبر ہوتی ہے۔ ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکیورٹی بابر عباس خان اور میڈیکل آفیسر ناصر جمال پاشا سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین ندیل چودھری کے ہمراہ ساؤتھ برڈ، لاہور۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور یو ایس ایڈ کے مابین طبی سہولتوں کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے تعاون پر اتفاق ہوا۔ دونوں اداروں کے نمائندوں کے اجلاس میں ہیلتھ کیئر سسٹم کی بہتری کے لیے اشتراک کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ یو ایس ایڈ کے سینئر ٹیکنیکل ڈاکٹر محمد احمد عیسیٰ اور ڈاکٹر محمد اسماعیل پر مشتمل 2 رکنی وفد نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی او ڈاکٹر محمد اجمل خان سے ملاقات کی اور اس موقع پر کمیشن کے ڈائریکٹرز ڈاکٹر مشتاق سلہریہ اور ڈاکٹر محمد انور جنجوا بھی موجود تھے۔ ملاقات میں یو ایس ایڈ کے وفد کا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ہسپتالوں اور کلینکس پر بہتر فراہمی صحت کو معیار کو بہتر بنانے میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ ادھر حکومتی اراکین کی جانب سے ہونے والی میٹنگز اور احکامات کا حوالہ جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ صنعتی پالیسی پر عمل درآمد سے روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے۔
50 लाख घरों की तामीर के लिए बनाई जाने वाली वफाकी टास्क फोर्स बराए हाउसिंग का पंजाब में पहला इजलास। मंसूबे के तहत बैंकों, सरमायाकारों और आवाम को जमीन के लेन देन से मुतालिक दरपेश मसाइल को मौसर तरीके से निपटाने के लिए रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और कर्जों के हुसूल के लिए स्पॉन्सर शेल्टर फाउंडेशन बनाने का फैसला किया गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 198 मर्दान अली जैदी और वाइस चेयरमैन जहांगीर अहमद खान की जानिब से यूनियन काउंसिल्स की सतह पर होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनकाद बारे इजलास हुआ। गंगाराम अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट गायनी यूनिट बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि गायनी यूनिट अस्पताल की ज़ेर मिल्कियत एक खस्ता हाल रिहाइशगाह की जगह पर तामीर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जो मंसूबे पंजाब के लिए जरूरी हैं उन्हें जारी रखा जाएगा, जिन मंसूबों में खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत का पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के दफ्तर का दौरा। नियासलम इकबाल का कहना है कि बिजनेस प्लान देने वाले हुनरमंद नौजवानों को 30 लाख रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने पंजाब भर की एजुकेशन अथॉरिटीज में तैनात अफसरान को मशावरत के लिए लाहौर तलब कर लिया। स्कूल की हालत अभी आपको बताएं, कस्टम्स ने एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मोबाइल फोन कस्टम के ग्रेड 18 के अफसर के वालिद ने मेडिसन कार में स्मगल करने की कोशिश की थी। कस्टम्स के अमले ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर फ्रीट यूनिट पर 6800 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त कर लिए। अब आपको बताएं, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर के ज़ेर एहतमाम इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। 14वें रोज भी 3 खुश नसीबों का उम्रे के लिए कुरान निकाला गया। इस मौके पर रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद की जानिब से ग्रीन फ्राइडे पर 70% डिस्काउंट का ऐलान भी किया गया। खाना काबा और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रहीम स्टोर की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। रहीम स्टोर से 3000 की खरीदारी करने वाले शहरी कुरानंदाजी का हिस्सा हैं। 14वें रोज कुरानंदाजी इकबाल टाउन ब्रांच में हुई, जिसमें 3 खुश नसीब उम्रे के टिकट्स के हकदार ठहरे। रहीम स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव राना अख्तर का कहना है कि ये उनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो उम्रे के पैकेज तकसीम कर सके। इस मौके पर राना अख्तर ने ग्रीन फ्राइडे में अप टू 70% डिस्काउंट का भी ऐलान किया, जिससे शहरी 17 से 25 रबीउल अव्वल तक रहीम स्टोर से खरीदारी पर अप टू 70% डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। उम्रा पैकेज हासिल करने वाले अफराद की खुशी भी दीदनी थी और उम्रे का टिकट हासिल करने पर रहीम स्टोर की इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा करती रही। तकरीब के अख्ताम पर आसान सवालात के जवाब देने वालों में कुरान मजीद में दिए गए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42।